بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سلطنت میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت ہی ایماندار اور نیک آدمی تھا۔ یہ اپنی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے پورے قبیلے میں مشہور تھا۔ کرم دین ہر روز صبح صبح جنگل کی طرف روانہ ہوتا، وہاں لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جاتا، 4 پیسے کما لیتا۔ اسی طرح اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک دن کرم دین جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کسی نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ یہ 20 سالہ ایک قد آور نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ وہ شیو کرتا تھا، بلکہ قدرتی طور پر اس کے جسم اور چہرے پر بالکل بال نہیں تھے۔ کرم دین نے جیسے ہی لاش کو دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پہلے تو وہ جنگل سے بھاگنے لگا، پھر سوچا کہ یہ بات غلط ہے، حقیقت کا سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ کرم دین علاقے کے رئیس کی طرف روانہ ہوا اور رئیس سے کہا کہ جناب، ہمارے اس گاؤں کے ساتھ والے جنگل میں کسی کی لاش پڑی ہے۔ کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ رئیس نے کرم دین کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو حیران ہوا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ جب وہ جنگل میں پہنچا تو واقعی پیپل کے درخت کے نیچے ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی اور اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ رئیس نے علاقے کے تمام لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اس نوجوان کو پہچانتا ہے۔ تمام لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ کوئی اجنبی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ رئیس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے قاتل کو پکڑنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے علاقے میں قتل ہوا ہے اور اس کی لاش میرے ہی علاقے سے ملی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن اس کو پکڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رئیس نے کرم دین سے کہا کہ جہاں نوجوان کی لاش پڑی ہے اس کے ارد گرد درختوں کو کاٹنا شروع کرو۔ کم از کم 2 سے 3 درخت کاٹو اور اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آئے وہ مجھے ضرور بتانا۔ کرم دین نے رئیس کے کہنے پر درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جب وہ ایک درخت کاٹ چکا اور دوسرے درخت کو کاٹ ہی رہا تھا تو 3-4 لوگ بھاگتے ہوئے کرم دین کے پاس آئے۔ انہوں نے کرم دین پر سختی کی اور کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ یوں درخت کاٹ رہے ہو؟ تم جنگل سے خشک لکڑیاں تو پہلے ہی جمع کر کے لے جاتے تھے، لیکن تجھے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن تم تو درختوں کو کاٹنا شروع ہو گئے ہو، اور اس بات کی اجازت ہم بالکل تجھے نہیں دیں گے۔ اس جنگل کی ذمہ داری ہم کو سونپی گئی ہے۔ رئیس جو چھپ کر ان آدمیوں اور کرم دین کی گفتگو سن رہا تھا اب سامنے آ گیا۔ ان نوجوانوں کو گرفتار کروایا اور سارے قبیلے والوں کے کہنے پر یہ رئیس ان کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں پیش کیا۔ سلطان نے سارا ماجرا پوچھا تو رئیس نے اپنا مقدمہ سلطان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، کل صبح ایک نوجوان کی لاش اسی جنگل سے برآمد ہوئی۔ ایک انسان کا قتل ہوا تو جنگل کے محافظوں یعنی کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا چلا، لیکن اسی مقام پر درخت کاٹے گئے تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اور لکڑہارے کو درخت کاٹنے سے منع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو ان آدمیوں سے پوچھا کہ تم اتنے لا علم کیسے ہو سکتے ہو کہ جب انسان کو مارا گیا تو تم لوگ لا علم تھے، مگر جب اسی مقام پر درخت کاٹا گیا تو تم بھاگتے ہوئے آئے؟ آدمی نے کہا سلطان معظم، ہماری بات کا یقین کریں، ہم نہیں جانتے کہ اس نوجوان کو کس نے مارا۔ جب یہ لکڑہارا درختوں کو کاٹ رہا تھا تو کلہاڑے کی آواز اور درختوں کے گرنے کی آواز سے ہم اس کی طرف بھاگے، لیکن ہم اس بات سے بالکل لا علم ہے کہ وہ نوجوان کون ہے اور انہیں کس نے مارا۔ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور اس کی جان بچانے کی خاطر بھاگتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ مارا گیا لیکن تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ خیر، اس بات کی تحقیق میں ضرور کروں گا اور جب تک یہ تحقیق نہیں ہوتی میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہ خنجر منگوایا جس کی مدد سے نوجوان کو مارا گیا۔ شہر کے تمام لوہاروں اور اوزار بنانے والے دکانداروں سے رابطہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس ساخت کا خنجر تمہاری دکان سے کون لے کر گیا؟ ایک بوڑھے لوہار نے خنجر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ سلطان کے ایک وزیر نے اس سے حیرانگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تقریباً 50 سال سے میں یہ دکان چلا رہا ہوں،
इससे पहले मेरा बाप दादा भी यही काम करते थे। खंजर तो मेरा दादा बनाता था, ये कोई नया खंजर नहीं बल्कि पुराना औजार है। वजीर ने जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस लोहार की हर एक बात से आगाह किया तो सुल्तान बहुत ज्यादा हैरान हुए। साथ में खड़े अली बिन सफियान ने जब इस खंजर के बारे में सुना तो वो भी चौंक गया। सुल्तान के एक खास बूढ़े बुजुर्ग वजीर ने सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम शायद कातिल का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं। बात दरअसल ये है कि एक एक घर के दरवाजे पर जाकर हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि ये नौजवान कौन था और इसको किसने मारा और जिस औजार से मारा गया वो कहाँ बनता था। सुल्तान ने इस वजीर से कहा कि तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। वजीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हमें कातिल को पकड़ने के लिए या उसका सुराग लगाने के लिए एक खेल खेलना पड़ेगा। आप पूरे इलाके के लोगों को एक मैदान में जमा कीजिए। उसी जंगल के पास एक मैदान है, इसी में सबको जमा कीजिए। एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम कीजिए क्योंकि लोग बगैर दावत के तो जमा होने वाले नहीं। जब सब लोग मैदान में जमा हो जाएंगे तो खवातीन और मर्द हजरात दोनों से तब इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि पीछे कोई रह तो नहीं गया। अगर कोई ना आया तो इससे तस्दीक करें कि वो क्यों ना आ सका। सुल्तान मुअज्जम, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं इस कातिल को जरूर पकड़ लूंगा। सुल्तान पहले तो किसी गहरी सोच में डूब चुके, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और इसके बाद पूरे इलाके के लोगों को दावत दी। इसमें मर्द औरतें दोनों शामिल थे। बाद में इस बात की तस्दीक की गई कि पीछे कोई रह तो नहीं गया। फिर सुल्तान को यह बताया गया कि सब मैदान में पहुंच चुके हैं, पीछे कोई भी नहीं रहा। इन सब को खाना खिलाया गया। इसके बाद जब सब ने खाना खा लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे इलाके में एक अजनबी का कत्ल हुआ है, लेकिन हम इसे नहीं पहचान पाए कि ये कौन है और इसका कातिल कौन है। खैर, अब वो बचकर नहीं जाएगा क्योंकि हमने एक बड़े आलिम को बुलाया है जो कि कातिल को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। अब सब खवातीनों हजरात से गुजारिश है कि एक कतार बना ले। औरतों की अलग, मर्दों की अलग कतारें बनेगी। फिर बारी बारी सबको 10-10 दिनार भी दिए जाएंगे। मगर वापस जाते वक्त आपने वो जो कपड़ा लटका हुआ है इसको छू कर ही जाना है, क्योंकि जब कातिल इस कपड़े को छुएगा तो ये सफेद रंग का कपड़ा सुर्ख रंग का हो जाएगा। और आप सबको यहाँ जमा करने का मकसद यही है कि कातिल को पकड़ा जाए। ये सुनकर मैदान में तमाम लोगों के चेहरे पर तशवीश देखी गई। तहम इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म को मानने का फैसला किया। मर्दों औरतों ने एक एक करके सब ने इस कपड़े को छुआ। फिर इस कपड़े से 1 मीटर के फासले पर एक सिपाही हाथों को चेक कर रहा था। आखिरकार एक सिपाही ने एक आदमी के हाथ चेक किए, फिर जोरदार आवाज लगाई। अली बिन सफियान को बुलाया। इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि मेरे लिहाज से मैदान में मौजूद पूरे मजमे में सिर्फ यही एक मशकूक शख्स है। देहाती ने कहा कि मुझे क्यों पकड़ा है, मेरा कसूर क्या है? मैंने इस लटके हुए कपड़े को छुआ, इसके बाद सफेद रंग का कपड़ा सुर्ख नहीं हुआ, तो मैं किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? सुल्तान मुअज्जम, फिर सुल्तान ने बताया कि कपड़े की रंगत तब्दील होना महज एक ड्रामा था। बात दरअसल ये थी कि जिसके दिल में चोर था इसने इस जुर्म का इर्तकाब कर ही लिया। इसने कपड़े को छुआ ही नहीं। यह सिपाही लोगों के हाथ सूंघकर उस खुशबू को महसूस कर रहा था जो इस कपड़े पर लगाई गई थी। सिवाय तुम्हारे हर किसी ने कपड़े को छुआ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चोर था? तुमने इस कपड़े को हाथ क्यों ना लगाया? क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो खुशबू महसूस नहीं हुई जो कि इस कपड़े पर लगी थी। मैदान में मौजूद हर एक शख्स के हाथ से वो खुशबू महसूस की जा सकती थी। यह सुनकर वो देहाती परेशान हुआ। इसके बाद जब इस पर सख्ती की गई तो इसने बताया कि हाँ, मैंने कत्ल जरूर किया था, मगर इस नौजवान को जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। मैं तो उस कत्ल को छुपा रहा था जो मैंने अपनी बीवी का किया था। यह सुनते ही मैदान में मौजूद तमाम लोग, अली बिन सफियान, तमाम सालार, वजीर और हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरान हो गए कि हम इस नौजवान के कातिल को पकड़ते पकड़ते एक और कातिल को पकड़ने में कामयाब हुए। फिर सुल्तान ने इस देहाती से पूछा कि तुमने अपनी बीवी को क्यों और कब कत्ल किया? देहाती ने जवाब दिया कि इस बात को 6 माह का अरसा गुजर चुका है। मेरी बीवी मेरे हाथ से कत्ल हुई थी, लेकिन मैंने उसे हादसे के तौर पर पेश किया और इसी तरह
तमाम इलाके वालों से ये हकीकत छुपाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो। इस तजर्बे का कम अज कम ये तो फायदा हुआ कि एक मुजरिम हमारे हाथ आया, मगर नौजवान का केस वैसे का वैसा रहा। नौजवान को दफना दिया गया। 1 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन कातिल का कुछ पता ना चल सका। लोग इस बात को फरामोश कर चुके थे, मगर 1 साल बाद ऐसा वाकया हुआ जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा उस नौजवान के कातिल का इशारा मिला। सिपाही भागता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, जनाब, जिस दरख्त के नीचे उस नामालूम अजनबी की लाश मिली थी, उसी दरख्त के नीचे एक 3-4 माह का बच्चा पाया गया है। कोई जालिम रात के अंधेरे में इस बच्चे को दरख्त के नीचे सुलाकर चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे को किसी जानवर ने नुकसान नहीं दिया। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हैरान कुन थी। ये एक मासूम सा बच्चा था जो सुल्तान ने अपनी तहवील में ले लिया। सुल्तान सारी रात सोचता रहा कि आखिर इस बच्चे का कत्ल से क्या ताल्लुक है। सुल्तान के एक बूढ़े खादिम ने कहा कि बेटा, ये बच्चा हमें कातिल तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बच्चे की परवरिश करें, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उम्मीद है कि कातिल को पकड़ लेंगे। कुछ माह बाद बच्चा बैठने के काबिल हुआ तो बूढ़े खादिम ने सुल्तान को मशवरा दिया कि यह बच्चा किसी कनीज के हवाले करे और इससे कहें कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में इस बच्चे को ले जाए। कोई ऐसा जरूर होगा जो बच्चे की तरफ चला आएगा और यूं हमें मुजरिम का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। सुल्तान ने बूढ़े खादिम के मशवरे पर अमल किया और बच्चा किसी कनीज के हवाले किया। कनीज इस बच्चे को लेकर इर्द गिर्द के इलाकों में घूमती रही। फिर एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां एक औरत ने बच्चा देखा तो उसकी तरफ भागी। कनीज के हाथ से बच्चा लिया, इसे चूमना शुरू किया, इसे सीने से लगाया। काफी देर तक इसे प्यार करती रही, फिर वापस कनीज को दे दिया। कनीज ने इस औरत से पूछा कि आप इस बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रही थी। वो खामोश रही, बगैर कुछ बताए वापस चली गई। कनीज शाम के वक्त वापस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और इन्हें सारा मामला बताया। सुल्तान अपने सिपाहियों समेत उस औरत के घर रवाना हुआ। उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है और तुम इसे इतना क्यों प्यार कर रही थी। औरत खामोश रही। सुल्तान इससे बार बार पूछता रहा। औरत की मुसलसल खामोशी सुल्तान को परेशान कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस औरत को गिरफ्तार करो और जब तक ये इस बारे में कुछ ना बताए इसे कैद में रखो। औरत से जब सिपाहियों ने बच्चे के बारे में सख्ती की तो इसने कहा कि मेरी जुबान काट दो, मगर मैं फिर भी इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। सिपाहियों ने सुल्तान से कहा कि वो औरत जिद्दी है और बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रही। सुल्तान के दिमाग में एक ख्याल आया। वो बच्चे को लेकर इस औरत के सामने आया और कहा कि तुम बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, ठीक है, फिर हम भी इस बच्चे के साथ वही करेंगे जो हमारे दिल में आएगा। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और बच्चे की गर्दन उड़ाने के लिए एक सिपाही से कहा कि तलवार से इस बच्चे का सर तन से जुदा कर दो। बस ये सुनना था कि ये औरत चीखती हुई सिपाही के आगे आई और कहा कि मेरे बच्चे को मत मारो। सुल्तान ने औरत के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो हैरान हुआ और कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है। तुम पागल थी क्या? आधी रात को जंगल में इस बच्चे को तन्हा जानवरों के दरमियान लिटाकर खुद घर आ गई। क्या कोई माँ इतनी भी संग दिल हो सकती है कि अपने लखते जिगर को यूं तन्हा छोड़कर चली जाए? बताओ, तुमने बच्चे के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? ये तो इसकी अच्छी किस्मत थी, वरना जंगली जानवर इसे एक लुकमा बना लेते। औरत ने सुल्तान से कहा कि मैं आपको सारा वाकया बताती हूँ, मगर आप मुझसे एक वादा करें कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे और अगर मैं हक पर हुई तो मुझे मुआफ करेंगे। सुल्तान ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ करूं और अगर तुम वाकई हक पर हुई तो तुझे कुछ रियायत दूंगा, बस तुम मुझे सच बताओ। औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि मेरे पास हमारे कबीले की एक बूढ़ी औरत रहती थी। मैं उसे अपनी माँ समझती थी। वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाती थी। एक दफा बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि बेटी, हो सके तो मुझ पर एक एहसान करो, मैं आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, माँ जी हुक्म करें, हो सका तो मैं आपके काम जरूर आऊंगी, मुझे आपकी मदद करके अच्छा महसूस होगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, मैंने एक बात तुझसे छुपाई थी, तुझे नहीं बताई। मेरी एक बेटी है जो मैंने बहन को दे दी थी। बहन की वफात के बाद इसका मेरे अलावा अब कोई नहीं। मैं उसे इधर ले आना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को इस घर में रहने की इजाजत दोगी?
मैंने इस बूढ़ी मुलाजमा की बेटी को घर में रहने की इजाजत दी। दूसरे दिन वो अपनी बेटी लेकर इधर मेरे पास आई। इसकी बेटी खूबसूरत और नौजवान थी। कुछ दिन बाद बूढ़ी मुलाजमा किसी लंबे सफर पर रवाना हुई तो इसने मुझसे कहा कि मेरे वापस आने तक मेरी बेटी का ख्याल रखना। बुढ़िया ने मुझसे हकीकत छुपाई। असल में वो इसका बेटा था, एक ऐसा नौजवान जिसके जिस्म पर बाल नहीं थे। कोई शख्स भी पहली नजर में जब इसे देखता तो इस बात का बिल्कुल यकीन न आ सकता कि ये लड़का है, और जब इसने खवातीन के कपड़े पहने तो हूबहू लड़की लग रही थी। मैंने इसकी शक्ल से धोखा खाया और वह बूढ़ी औरत जो मेरे घर में रहती थी, मैंने इस पर तरस किया, लेकिन वो तो सारी हकीकत जानती थी कि इसकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, लेकिन इसने मुझसे हर बात छुपाई। मैंने अगली रात को इसे लड़की समझते हुए अपने कमरे में सुलाया। रात को इस पर शैतान गालिब आया। इसने मुझसे मेरी लाख कोशिश के बावजूद मुझे थप्पड़ मारे और मुझे नशा देकर सोहबत कर डाली। उस वक्त मैं इसे इस फेल से रोकना चाह रही थी मगर रोक ना पाई। मगर वो जैसे ही दूर होने लगा तो मैंने इसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। आधी रात को मैं इसे घसीटते हुए उस जंगल में इस दरख्त के नीचे लिटाकर चली गई। इस लड़के की वजह से मैं हामला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इसे मारना चाहा, लेकिन फिर मार ना सकी। 2-3 माह बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, इसे भी मैं वहीं ले जाना चाहती थी जहां इसका बाप था। इसलिए रात को तारीकी में चल पड़ी। उसी दरख्त के नीचे बच्चे को रखकर घर वापस आ गई और सो गई। मगर जब सुबह हुई मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बच्चे के साथ ज्यादती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह सादक मैं जंगल की तरफ रवाना हुई कि शायद अभी वो जिंदा हो, चूंकि मैं एक औरत थी और वो बच्चा मेरे ही बतन से पैदा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि इस मासूम का क्या कसूर, इसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। जब सुबह सुबह मैं जंगल में पहुंची तो मेरे आने से पहले ही आप लोगों ने इसे उठा लिया। यूं मैं वापस आ गई, मगर मेरा दिल बेकरार रहा, तड़पता रहा। मुझे मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। कल जब कनीज के हाथों ने इस बच्चे को देखा तो पहचान गई और गले से लगा लिया। दिल को सुकून महसूस हुआ कि वो जिंदा है। सुल्तान ने इस औरत से पूछा कि इस बच्चे को वापस ले जाना चाहती हो? तो इसने कहा, हाँ, मुझे ये बच्चा वापस चाहिए। सुल्तान मुअज्जम, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने जो किया मजबूरी में किया, क्योंकि जिस कबीले में मैं रहती हूं, अगर वो लोग मुझे इस बच्चे के साथ देख लेते तो मेरी सारी जिंदगी नरक बना देते और मैं किसी को क्या जवाब देती। लेकिन साथ ही साथ मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो गलती मुझसे हुई मैं अदालत से मुआफी की तलबगार हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकतूल नौजवान की बूढ़ी मां को बुलाया और इसे सारा माजरा बताया तो सुल्तान भी हैरान रह गए, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा सब कुछ पहले से जानती थी। सुल्तान ने जब इससे अपने बेटे की कातला औरत के बारे में पूछा तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मेरे बेटे ने जो किया वो गलत था। अगर इस लड़की की जगह कोई भी और लड़की होती तो वो यही करती। इसलिए मेरे बेटे को इसके किए की सजा मिल चुकी है और मैं इस औरत को मुआफ करती हूँ। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत को मुआफ कर दिया और वो बच्चा इसे वापस कर दिया।